Good morning to all of you. I, Professor Bhavik Panchal, welcome you all in the today's session of Environment for Business. The ongoing chapter is international environment. Fine. The topic was discussed. That topic is globalization. Fine. The globalization is going on topic we have discussed in the last session. So we will continue our topic with globalization. Another topic is multinational corporations. Here I share the PPT of the topic globalization. Moving further, these are the various MNC who are working in India. Say for example, McDonald, Google, YouTube. It is again Google products, Coca-Cola, Yahoo, Samsung, Apple, Mastercard, fine, Amazon, Panasonic, and number of companies are there. Facebook, fine. So these are the examples. हम आगे भी पढ़ेंगे तो ये example सारे example को consider करेंगे जो इंडिया में रह के अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर द सक्सेसफुल एमएनसी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड वो सक्सेसफुल एमएनसी है. दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट. दीज आर द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन. बिकॉज दिस फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन जो है अभी पूरी पूरी दुनिया में फैल चुका है. एंड वी डिस्कस दिस फैक्टर्स ऑल्सो. देर आर सर्टेन ट्रेड बैरियर्स जो है वो ख़त्म हो गए. उसके बाद क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन बहुत रैपिडली फैला. Now comes to the MNC and globalization. This is the introduction part of MNC, multinational corporations. Fine. It is a challenging for any business to doing business in a worldwide because there are certain challenges. अगर आप अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस है. फाइन. बिकॉज आपको पूरा आपका वर्क फोर्स डाइवर्स होगा. उनको प्रॉपरली मैनेज करना, उसको प्रॉपरली हैंडल करना, ठीक है. से फॉर एग्जांपल अगर कुछ एग्जांपल लेके राइट नाउ एवरी एमएनसी हैज चैलेंज टू रन देयर बिजनेस ऑपरेशन. जैसे कि मान लो अमेजोन है, अमेजोन इंडिया जो है वो भी अभी अपने अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए डिफिकल्टी फेस कर रहा है. गूगल है तो गूगल में का पूरे वर्ल्ड में गूगल फैला हुआ है, तो अलग अलग वर्ल्ड का जो जियोग्राफिक कंडीशंस है वहाँ पे अभी हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन क्या है वहाँ की. प्लीज mute your audio, students. Abhilash Bhardwaj unmute his video, so I removed from the session. And please make sure do not do any activity. I need to take action. Fine. So it is a difficulty in run the operation in a diverse world where there are a number of challenges are there. Now multinational corporation, we have discussed these things. Whose registered office or home office in their home country, or we can say mother country, and they have a number of subsidiary companies in other countries also. And we have taken example of Google and number of companies, Coca-Cola, and we can say McDonald or many more companies. They are doing their operations in a number of countries, but they have their registered office in their home country. Fine. Sometimes multinational corporations may have a joint venture with a local business. Say, for example, Maruti Suzuki, Tata Sky, fine, and IPCO, Tokyo General Insurance, and number of companies are there who are doing joint venture with local company, and they are entering in the any country's market. Say, for example, Walmart and Flipkart. They have joint venture. Then Flipkart, Walmart take increase their, we can say, percentage of share, and now Walmart have majority control. Right. Then there are certain issues related to MNC. What are the various issues, we can say, challenges and problems in in front of MNC? So first of all, adapting the trends and events of host country. Fine.
ट्रेंड्स एंड इवेंट्स ऑफ होस्ट कंट्रीज आर डिफरेंट, उनका कल्चर अलग होता है, उनका रिचुअल्स अलग होते हैं, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, एंड द नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज आर देयर, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी होती है। तो सभी को अडॉप्ट करके आगे चलना उनके लिए जो है चैलेंज है। लार्जर सोसाइटी की तरफ वो अकाउंटेबल होते हैं, देन प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनके साथ साथ उनको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना होता है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, साथ साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना उसके लिए चैलेंजेस है। These are the advantages of MNC. Fine. Uh, you are familiar with all these points. Better access to the worldwide market, because with the help of MNC you can have access to the world market. Fine. And it is a greater opportunities for you. Then right now, major Chinese companies are trying to do these things because they are trying to invest in the companies around the globe. Fine. And they are trying to increase their stake. Fine. This is the aggressive strategy adopted by the Chinese companies so far. Fine. In Indian company that is called HDFC. Fine. One of the Chinese company, People's Bank of China, adopting. Fine. And then students, make sure please you mute your audio. I request once again. Yes, we have at the first point better access to worldwide market. Then second, best access to the capital investment. Fine. If you have capital investment, the if you want to do a capital investment in another country, the MNC is the best way. Third is a transfer of advanced technology. By using MNC, this is the advantage that underdeveloped country or developing country can access the good or advanced technology. Say for example, if we are taken example of Amazon and number of other companies, those who came into the India, so they came with their advanced technology. वो अपनी advanced technology के साथ वो इंडिया में आते हैं, और उसके बाद लोग इंडिया में आके 1 minute, some chat is there. Kajal Patel sir, in last one, please explain the difference between corporate management and corporate governance, if possible. Fine. I will explain. Please, once you call me, I will explain the thing, because this is the topic of earlier session. Now we are focusing on this session. Then we are talking about the advanced technology. एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो एमएनसी आती है, जैसे अगर इंडिया में कोका कोला की बात करें, और भी बहुत सारी एमएनसी है, जैसे हम मॉरिस गैराज की बात करें, कंटेम्प्ररी एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल, देन किया सेल्टोस है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आई और इंडिया में पूरा जो है वो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। अब एग्जांपल ले, मॉरिस गैराज इंडिया में आई तो उन्होंने अपनी सबसे पहली कार जो है एमजी हेक्टर लॉन्च किया, उसको नाम दिया इंटरनेट कार, इंटरनेट। फाइन। सो वो पूरे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आई और उन्होंने पूरा डेफिनेशन चेंज कर दिया। फाइन। उसके बाद लार्ज स्केल ऑपरेशन और लार्ज स्केल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं वो लोग। फाइन। उसके बाद लोकल सप्लायर्स डेवलपमेंट। फाइन। लोकल सप्लायर डेवलपमेंट मतलब वो कंपनी जो रॉ मटेरियल लेती है जनरली वो लोकल सप्लायर से लेती है। फाइन। तो अल्टीमेटली उसको बोला जाता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज। अगर कोई कार बनाती है तो कार बनाने के लिए जो स्मॉल स्पेयर पार्ट्स है, जैसे कि स्क्रू है, नट बोल्ट है, तो वो लोग कहाँ से लेंगे? वो लोकल लोगों के साथ लगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बेनिफिट्स लोकल कंपनीज को भी बेनिफिट्स होगा। तो उसके बाद नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इधर वो वर्कर के लिए, लेबर के लिए, या एग्जीक्यूटिव के लिए, मैनेजर्स के लिए, तो हर एक के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो साथ लेके आएगा एमएनसी। फाइन। देन उनको एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा, बिकॉज एमएनसी का एसओपी फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो उनका यूनिवर्सली स्टैंडर्ड होता है, मतलब और जो अराउंड वर्ल्ड है, तो उनको एडवांस ट्रेनिंग जो है सीखने को मिलेगा। फाइन, दैट इज द बेनिफिट। उसके बाद एमएनसी का दूसरा बेनिफिट ये है कि उनको मैनेजरियल टैलेंट जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कंट्री का जो है टैलेंट अलग अलग है। जैसे कि अगर हम इंडिया के डेमोग्राफिक्स की बात करें, इंडिया के टैलेंट्स के,
तो इंडिया का 65% से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वो अभी यंग एज में है। एंड दे आर द टेक्नो सेवी पीपल, दे आर द लिटरेट, साक्षर है वो लोग, और टेक्नो सेवी मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना दे नो वेरी वेल। फाइन, इसकी वजह से क्या होगा कि जो है एमएनसी जो इंडिया में अभी परफॉर्म कर रही है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएगी। आपको शायद पता होगा, लेकिन एक फील्ड है बीपीओ एंड केपीओ। तो ये फील्ड में जो वर्ल्ड में जितनी भी एमएनसी है वो सबसे ज़्यादा एमएनसी इंडिया में है। आपने सुना होगा कि भाई कोई कंट्री का कॉल सेंटर इंडिया में है, सो दैट इज द थिंग। इंडिया का जो पूल ऑफ टैलेंट है वो सबसे ज़्यादा है। कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दैट इज द ऑब्वियस। देन लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड बेटर प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफ एमएनसी। उसके बाद देन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात किया गया है। होस्ट कंट्री नेशन मतलब जो जो कंट्री जहाँ पे एमएनसी काम करे उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उन पे भी जो है फेवरेबल इफेक्ट की बात किया गया है। बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज फेवरेबल इफेक्ट नहीं होता, कभी कभी जो है अनफेवरेबल इफेक्ट भी होता है। तो दिस इज द टू साइड पॉइंट। हम उसको दोनों तरह एडवांटेज में भी ले सकते हैं और डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द अप्रोच। डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी, सबसे पहले जो नेशनल सॉवेरेनिटी मतलब जो राष्ट्र हित है, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कभी कभी एमएनसी आके जो है ये राष्ट्र हित को सर्वोपरि नहीं मानती, ठीक है, वो अपने कंट्री का, होम कंट्री का जो है वो आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर देगी। फाइन, जैसे ज़्यादातर एमएनसी करती है। फाइन, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो एमएनसी होती है वो अपना होम कंट्री का पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखती है। जैसे अगर हम अमेरिका की कंपनीज की बात करें कि हार्ले डेविडसन, तो हार्ले डेविडसन की बाइक्स जो है इंडिया में सेल होती है, लेकिन वो ऑलवेज जो है सोचेगा, वो अपनी होम कंट्री का सोचेगा। जैसे वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सारे मोबाइल फोन जो इंडिया का मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, तो वो साथ साथ में अपना पॉलिटिकल बेनिफिट सोचेगा। फाइन, सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फाइन, देन द अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हम अभी बात कर रहे थे चाइना का। तो चाइना का अभी स्ट्रेटेजी है कि दुनिया में जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे उनका शेयर जो है परसेंटेज इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हो। फाइन, तो इंडिया ने जो है ये रिकॉग्नाइज किया और तुरंत जो है अभी इंडिया का एफडीआई का एक रूल्स है वो चेंज कर दिया इंडिया की गवर्नमेंट ने। और ये बनाया कि इंडिया की गवर्नमेंट में कि इंडिया में कोई भी कंपनी में अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको सबसे पहले इंडिया की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फाइन, तो दिस वाज द कंटेम्प्ररी एग्जांपल। उसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन, उसके बाद जो होस्ट कंट्री का नेचुरल रिसोर्सिस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसका क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब उसको दुरुपयोग किया जाता है। फाइन, एंड दैट इज ट्रू कि भाई मान लो इंडिया में कोई एमएनसी काम कर रही है, तो इंडिया का अभी देखो एक महीने से लॉकडाउन है इंडिया में। अब इंडिया में जो लॉकडाउन है तो काफ़ी सारे इंडस्ट्री बंद पड़े हुए हैं, तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरह से है अभी। एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया, नदियाँ जो है वो उनका पानी शुद्ध हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको एक्यूआई बोला जाता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हम समझे कि भाई वो जो एमएनसी है वो कंट्री में आके इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, और ये नेगेटिव साइड है। उसके बाद लेबर एक्सप्लॉइटेशन होता है कि कंट्री का जो लेबर है उनका भी शोषण होता है। फाइन, ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माय वॉइस। फाइन, देन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। फाइन, देन होस्ट नेशंस इंडस्ट्री में बी डिस्ट्रॉयड। फाइन, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक कि अगर कोई एमएनसी आता है तो सबसे पहले वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फाइन, कुछ एग्जांपल ले कि भाई से फॉर एग्जांपल टायर इंडस्ट्री है, तो टायर इंडस्ट्री में एमआरएफ टायर्स जो है और ये सारे लोकल प्लेयर्स है। अगर हम कोई और फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे अलाउ करते हैं तो क्या होगा कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो है सबसे ज़्यादा उसको नुकसान होगा। फाइन, कुछ एग्जांपल जैसे कि राइट नाउ ई कॉमर्स कंपनी को सबसे पहले सरकार ने उसको मंजूरी दे दी कि भाई आप जो है 28 अप्रैल से अपना बिजनेस ऑपरेशन शुरू कर सकते हो।
ठीक है। अब ई कॉमर्स की वजह से हमारे डोमेस्टिक जो छोटे किराना के व्यापारी हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। फाइन। और आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जो कंट्री में वो लोगों का ही है कि अब ये लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सर्व किया। ठीक है, तो ये सारा एक डिसएडवांटेज पार्ट है कि जब भी कोई एमएनसी आता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चैलेंज करता है, आइदर वो मॉरिस गराजीस हो, किया सेल्टोस हो, और जितने भी टोयोटा हो, hyundai हो, मर्सिडीज, और ये सारी कंपनी जो है बाहर की है, तो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं उनको थ्रेट होता ही है। देन हाउ टू रेगुलेट दिस एमएनसी, इनको रेगुलेट कैसे करें? तो सबसे पहला है ये हमारे नेशनलाइजेशन, जो हमारा राष्ट्रवाद है उनके सामने बहुत बड़ा थ्रेट है ऑब्वियसली। देन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास पावर है इनको रेगुलेट करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर सकती है? तो थर्ड पॉइंट में लिखा है उनको स्पेसिफिक टाइम पे ही अप्रूवल दिया जाए। आइदर वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम इनके लिए स्पेसिफिक किया जाए। या गवर्नमेंट इनको ड्यूअल टैक्स सिस्टम भी उनको अप्लाई कर सकती है। ड्यूअल टैक्स सिस्टम मतलब उनको होस्ट कंट्री में भी टैक्स पे करना पड़ेगा और होम कंट्री में भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इनसे क्या होगा कि उनको वो टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा, तो वो हो सकता है कि वो अपना जो है बिजनेस रिस्ट्रिक्ट करे। देन उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिनिमम अमाउंट स्पेंड करने का रेगुलेशन लाए। फाइन, अगर मिनिमम अमाउंट स्पेंड करते हैं उससे क्या होगा कि उनका रिसर्च लिमिटेड होगा, उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगा, तो नए नए इनोवेशंस वो नहीं कर पाएंगे। फाइन। देन डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ावा दिया जाए, उनको जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो एमएनसी है उस पर डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगी। हमने आगे भी ये जो है एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि हम अभी इमरजेंसी की सिचुएशन में, हेल्थ इमरजेंसी है तो काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। राइट नाउ वी आर डिपेंडेंट, आइदर वो ऑक्सीजन की सिलेंडर्स हो या वेंटिलेटर्स को बनाना या कोई फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स बनाना या पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन किट बनाना। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना। सो कहने का मतलब ये है कि जब अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है स्ट्रेंथन होती है तो उसका ऑलवेज जो है बेनिफिट्स होता है कंट्री को। नाउ एमएनसी इन इंडिया, एमएनसी इन इंडिया मतलब इंडिया में कैसे एमएनसी आई? हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया में है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो दो हिस्सों में है। हमने ये पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम 91 से पहले प्री प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म हम जनरली बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 के बाद जो है इंडिया जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो धीरे धीरे ओपन अप किया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई। हमने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सेगमेंट भी पढ़ा था, जैसे कि एग्जांपल ले, से फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो वहाँ से इंडिया में शुरुआत हुई। फाइन। ज़्यादातर अमेरिकन कंपनी जो कंपनीज है वो इंडिया में 37% जो है, मोस्ट 20 फर्म्स जो इंडिया की है उसमें 37% यूएसए की कंपनीज हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज की कंपनीज हैं इंडिया में जो काम कर रही है, इधर वो ब्रिटेन की हो, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम एंड मैनी मोर कंपनीज। देर आर एग्जाम्पल साउथ कोरियन कंपनीज, सैमसंग की बात की है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है, देन Hyundai मोटर्स एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। ठीक है, जो इंडिया में बिजनेस करती है, इधर वो हिटाची हो, एमजी मोटर्स जो चाइना की कंपनी है जो इंडिया में भी अपना काम करती है। नाउ कम्स टू द फॉरेन कैपिटल। फाइन। फॉरेन कैपिटल क्या होता है एंड वो कैसे काम करता है, कैसे कोई कंट्री का ग्रोथ होता है? ठीक है, देर आर थ्री थिंग्स, फॉरेन कैपिटल, एमएनसी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, दे आर लिंक क्लोजली। फाइन, वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फाइन। एंड फॉरेन कैपिटल इज अ फनल एंड सोर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, फॉर एमएनसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल जो है, कोई कंपनी ग्लोबल नहीं हो सकती, एमएनसी जो है कोई कंट्री में जा नहीं सकती। फाइन, सो फॉरेन कैपिटल इज अ क्रूशियल एंड important as well. Fine. Foreign technology and foreign capital.
are very important to develop the up till now untapped natural resources of developing countries. जो developing countries से natural resources है जिसका बहुत यूज नहीं हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका भी प्रॉपरली यूज होके वो अच्छे से काम कर पाएंगे। फाइन। और सबसे बड़ा जो सोर्स है एफडीआई का वो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बिकॉज एमएनसी है अपने साथ फॉरेन कैपिटल लाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट देके आते हैं और कोई कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। Fine. There are various factors that call for the foreign capital to a developing country. काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स है जो डेवलपिंग कंट्री में फॉरेन कैपिटल लेके आते हैं। सबसे पहले टू सस्टेन हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को सस्टेन मतलब बनाए रखने के लिए लॉन्ग टर्म में वो फॉरेन कैपिटल जो है वो ज़रूरी है। देन टेक्नोलॉजी गैप को फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल गैप का मतलब कोई भी कंट्री है तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है वो उस पर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल गैप से। फॉर एग्जांपल अभी देखो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी है, हम लोग 4G भी यूज़ कर रहे हैं और हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे सिटी है वहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट बेस पे 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। अब वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी 2G टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया गया है। तो अगर वहाँ पे फॉरेन कैपिटल आता है तो वो जो पूरा गैप है कि 5G और 2G के बीच में, तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कैपिटल एफडीआई वो गैप को कम किया जाए। ठीक है। देन दे आर एक्सप्लोइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। फाइन। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करना, ये दो तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करना मतलब अगर उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाए तो क्या होगा कि वो कंट्री बहुत सारे पीछे चले जाएगी, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो वो कंट्री उतनी ही आगे जा सकती है। फाइन। हियर हम एग्जांपल लेंगे अरब कंट्रीज का, ओपेक कंट्री जिसको बोला गया है। फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई, तो दुबई ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ किया। राइट नाउ दे आर द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी। अगर दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कीजिए तो उसकी दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है दुबई की। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है बिकॉज दे हैव यूज्ड देयर नेचुरल रिसोर्सेज, दे एक्सप्लॉइट देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेटर वे। बाकी दुबई जो है रण प्रदेश है, ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे डेजर्ट है, उसके सामने इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, बट स्टिल दुबई एंड अरब कंट्रीज इज मैनेज टू देयर नेचुरल रिसोर्सेज in a such a manner right now they are getting fruits of it. Fine. Then इनिशियल ग्रोथ बाय अंडरटेकिंग इनिशियल रिस्क, रिस्क और ग्रोथ दोनों की बात किया गया है कि एफडीआई आता है तो देर इज ऑलवेज रिस्क, रिस्क रहता है उसके साथ साथ ग्रोथ भी रहता है। आपने पढ़ा होगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जिसको बोलते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, दैट इज द कंसेप्ट। फाइन। देन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है एफडीआई आता है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री में होता है उसको डेवलपमेंट उसका ऑलवेज होता है एंड दैट इज द ट्रू। एंड आप देखो कि 10-15 साल पहले इंडिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, राइट नाउ अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फाइन। बिकॉज ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एमएनसी ग्लोबलाइजेशन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना चेंज हो गया। फाइन। आपका लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो गया, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हो गया। तो दैट इज ऑलवेज अनदर साइड्स। नाउ कम्स टू द काइंड्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड सेकंड वन इज फॉरेन एड। फाइन। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में ये एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट फॉरेन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन का सीधा इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी के थ्रू जाना। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं लेकिन वाई वाया सम पर्सन वाया सम कंपनीज। जैसे कि दुबई में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा, अगर आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करना है तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ के लोकल लोगों के साथ रह के आपको इनडायरेक्टली वहाँ के बिजनेस को करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं जो एमएनसी है और इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, पीएनजी से लेके हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला एंड मैनी अदर्स। These आर द डायग्राम्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया।
देन अदर काइंड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और कौन कौन सी तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि एनआरआई, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, मतलब दे आर बेसिकली इंडियंस बट वो सालों से बाहर रह रहे हैं फॉरेन कंट्री में, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। देन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फाइन, दिस इज द एडीआर जिसको बोला जाता है। और अगर कोई एडीआर को परचेज करता है और उसको रिसिप्ट, दे आर सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स, हमने आगे भी पढ़ा था, जैसे किसान विकास पत्र, वो लोकल लेवल पे थे, दिस इज द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स जो है एडीआर जिसको बोला जाता है, अगर उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर किया जाता है तो भी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। देन एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फाइन, अगर कोई इसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई दुबई ने ऐसा कोई बॉन्ड निकाला और यहाँ के इंडिया के लोग वहाँ वहाँ से बॉन्ड परचेज करते हैं, या स्विट्जरलैंड है या कोई कोई भी कंट्री, उसने बॉन्ड निकाला और इंडिया के लोग वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब दे आर गेनिंग फॉरेन कैपिटल, वो फॉरेन कैपिटल गेन कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल, फाइन, सबसे पहले several concessions given to the foreign investor which are denied to domestic entrepreneurs, फाइन, यहाँ पे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स की बात किया गया है कि अगर कोई फॉरेन इंडस्ट्री को अगर इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको जो है सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत आएगी, बिकॉज से फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि राइट नाउ चाइना से काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज है जो और अदर कंट्रीज की वो विड्रॉ कर रही है अपने बिजनेस, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट है इंडिया की, काफ़ी सारे स्टेट है उनको वेलकम कर रहे हैं, जैसे हमारे गुजरात के भी काफ़ी सारे जो है मिनिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं कि जो वहाँ से चाइना से जो कंपनी आ रही है हम गुजरात में लाए, उसके लिए वो उनको दे रहे हैं, काफ़ी कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं कि आप आ जाओ, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, हम आपको लैंड देंगे, फाइन, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देंगे। इससे क्या होगा कि लोकल जो कंपनीज है जो लोकली काम कर रहे हैं उनको जो है दिक्कत आएगी कि भाई आप हमें जो ये बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो और आप एमएनसी जो आते हैं उनको सारे बेनिफिट्स दे रहे हो। ये इश्यू हुआ था जब टाटा नैनो जो है गुजरात में आई थी, तो उसको साणंद के पास मुफ्त में ज़मीन दी गई थी, मुफ्त में मतलब बहुत ही कम दाम में ज़मीन दी गई थी, उनको टैक्सेशन जो है उसको रिलीफ दिया गया था। उस टाइम पे जो लोकल लोग थे उन्होंने ये अपोज किया था कि भाई आप जो है इनको क्यों इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हो, इट इज़ अ डिसएडवांटेज पार्ट। देन payout of dividend, royalty, capital, repatriation, flow out of the country। सिंपल इसका मतलब ये है कि मान लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो जब भी कोई एमएनसी प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट का पार्ट, मतलब आइदर वो डिविडेंड हो या जो भी इंटरेस्ट हो, किसको जाएगा, जो इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्टर फॉरेन का है, फाइन, तो वो फ्लो ऑफ मनी कहाँ जाएगा, आउटसाइड द कंट्री। फाइन, एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो एच डी एफ सी ग्रुप है, उसमें 1% से ज़्यादा शेयर है चाइना पीपल्स बैंक का, ठीक है, अब मान लो एच डी एफ सी जो ग्रुप है जो भी प्रॉफिट करेगा उसका 1% से ज़्यादा, ठीक है, मतलब जो भी डिविडेंड देगा वो कहाँ पे जाएगा, चाइना की कंट्री में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फाइन, देन concentration on production of goods and services catering to the rich and superior sections of society, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट्स एंड ग्रुप उनका, उनको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, जो रीच सेगमेंट है उनको ही सिर्फ कैटर करेगा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि एमजी हेक्टर्स या किया सेल्टोस, तो ये दो कार है, तो ये दो कार कौन से सेगमेंट के लिए बनाई गई, अगर कोई मिडिल क्लास सेगमेंट जो है ये अफोर्ड कर पाएगा ये दोनों कार, फाइन, से फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है या ऑडी है, ये सारी कंपनीज है, तो ये अपने प्रोडक्ट्स कौन से सेगमेंट को कैटर करती है, फाइन, सो ऑब्वियसली ये एक ऐसा बताया गया है कि ये जो है वो सिर्फ रिच लोगों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और दे आर गेनिंग प्रीमियम प्रॉफिट। फाइन, देन multiple collaboration with restrictive clause in agreement work out to be costly to be the recipient country, especially with reference to the duplication of technology transfer। फाइन, यहाँ पे होम कंट्री की बात किया गया है कि अगर कोई होम कंट्री मल्टीपल कोलैबोरेशन करती है, ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा,
और उनको जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र का डुप्लीकेशन है उसको भी वो सहन करना पड़ेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, अब वही टेक्नोलॉजी को इंडिया इंडिया कोई फॉरेन कंपनी से लेती है, फाइन, और बहुत सारी कंट्रीज को कोलाबरेट करती है, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, फाइन, और इससे क्या होगा कि जो है वो टेक्नोलॉजी कॉस्टली हो जाएगी और इंडिया में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, फाइन। सो जब भी आप कोई कोलाबरेशन करते हो, जब भी आप कोई चीज़ें लाते हो, तो सबसे पहले उसका यूज़ जान लो। आपको जानना है कि कोई एग्जिस्टिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी काम कर रही है, फाइन, उसका नो हाउ जानना पड़ेगा, फाइन। एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल इसका लेते हैं, से फॉर एग्जांपल कि इंडिया में राइट नाउ जो है हमारे गुजरात में एक रैपिड टेस्टिंग किट कोरोना की मंगवाई गई, फाइन, वो 4-5 दिनों से गुजरात में आके पड़ी है, बट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट उसका यूज़ नहीं करता, फाइन। वो तुरंत जो है कोरोना का डिसीज और सिम्टम्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती है, बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है जो गवर्नमेंट और हेल्थ वर्कर्स को नहीं आता। तो दैट इज द रिजल्ट कि आप कुछ भी टेक्नोलॉजी मंगवाते हो तो सबसे पहले उसका जान लो कि हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब अभी कोरोना के टेस्टिंग चल रहे हैं, तो उसको वो अल्टर करेगी तो कौन से हद तक करेगी, कैसे उसका यूज होगा, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होता है, फाइन। जैसे कि बीओपी, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, सरप्लस और डेफिसिट की बात करें, तो जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ऑब्वियसली अफेक्टेड होगा, फाइन। जैसे कि होस्ट कंट्री और होम कंट्री दो लोग हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे अफेक्ट होगा कि मान लो कोई कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, फाइन, जैसे कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाती है, फाइन। यस, 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 बोलिए। सी, बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज वस्तुएं किसी को सेल करते हो, परचेज करते हो, दैट इज अ ट्रेड, फाइन। ट्रेड में आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, फाइन, मैंने कोई चीज एक्सपोर्ट की, गुड्स और सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज मैंने इंपोर्ट किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, बदले में आप जो है पैसा देते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, बीओपी, सरप्लस और डेफिसिट, फाइन। जैसे आपको पता है कि सरप्लस क्या होता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, फाइन, और इंपोर्ट कम है, तो यू आर गेनिंग फॉरेन करेंसी, फाइन, सो दैट इज अ सरप्लस। डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब यू आर इंपोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस, तो आपका जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होता है, फाइन, सो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, फाइन। तो ये दो चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी। इज इट क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। देन एग्रीमेंट्स ऑलवेज फेवर फॉरेनर्स विच गो अगेंस्ट द डोमेस्टिक इंटरेस्ट। ठीक है, अभी आई मीन हमने एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो अगर वो एग्रीमेंट को मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट को नज़रअंदाज किया गया है, तो इससे क्या होगा कि वो फॉरेन जो एमएनसी है उसके फेवर में जाएगा, फाइन। से फॉर एग्जांपल कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक कंटेम्प्ररी में 2 दिन की बात करता हूँ कि लास्ट गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने बोला था कि 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनीज है वो सारी कुछ चीज वस्तुएं, इधर वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो, इंडिया में सेल कर पाएंगे, फाइन। अभी उन्होंने ये जो लास्ट उनका जो है कल ही आया एक एडवाइजरी, उन्होंने बोला कि सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी जो है सिर्फ जो है एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही सेल कर पाएगी। अब इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको समझाता हूँ कि राइट नाउ हमारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारी है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के, उन्होंने क्या क्या करके रखा है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो उसको स्टोर करके रखा हुआ है, फाइन। जैसे कि एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ये सारे अप्लायंसेस की डिमांड जो है ये सिर्फ 2 महीने की ही डिमांड है, फाइन। और 2 महीने में सबसे ज़्यादा क्रूशल महीना होता है मार्च अप्रैल, फाइन, बिकॉज मई और जून में तो सिर्फ बारिश शुरू हो जाती है, धीरे धीरे गर्मी कम हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा गवर्नमेंट को बोला कि भाई अगर आप ये ई कॉमर्स को अगर आप एग्रीमेंट करके ये सभी चीज़ें जो है सेल करने का आप लाइसेंस दो दोगे,
तो हमारे पास जो है स्टोर किया हुआ सामान, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम तो बेच नहीं पाएंगे। और ये 10-15 दिनों में क्या होगा कि ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है, वो 10-15 दिनों में सारी जो डिमांड है वो कैटर कर जाएगी, और हमारे पास जो है कुछ भी डिमांड आएगी नहीं। एंड दैट इज द वैलिड पॉइंट। उनका पॉइंट भी वैलिड था, तो गवर्नमेंट ने भी ये आइडेंटिफाई किया। फाइन, और तुरंत जो है ये एडवाइजरी जारी की कि जो ई कॉमर्स पोर्टल है सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स को ही सेल करेंगे। तो शायद आपने कल फील किया होगा कि सुबह 10-11 बजे तक ई कॉमर्स पोर्टल पे द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थी, और तुरंत गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली तो 11 और 12 बजे फिर से वो बैन कर दिया। सो दैट वाज द एग्जांपल कि ऐसा कोई एग्रीमेंट बन जाए जो लोकल इंटरेस्ट को भी वो वायोलेट करे, तो ये भी एक नुकसान कारक है, एक डिसएडवांटेज है। फाइन। देन distortions of domestic economic structure, obviously अगर कोई एमएनसी आती है तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो नुकसान करेगी। जैसे कि ओलिगोपोली प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ लोग मिलके, देयर आर फ्यू सेलर्स, और वो लोग मिलके क्या करेंगे, एक ऐसा कार्टेल बना देंगे, और वो कार्टेल जो है लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। ठीक है। देन अनसूटेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सूटेबल नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। और ऑफन ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी,